9 out of 10 traders failed in the market. And the reason behind all these things is very simple. Because लोग market को necessarily complicate कर देते हैं. Fancy setup, fancy indicators, signals, सब कुछ try कर लेते हैं. But the truth behind all this thing is very simple. Price खुद एक indicator है. और अगर तुम price को read करना सीख लिया, तो बाकी सब चीज secondary बन जाता है. So hello hustlers and traders. Welcome to my new channel. I am Atin Pravnik, an 18-year-old full-time trader. And today I will teach you everything about price action. So if you really like the video, please do subscribe, share with your friends whom you really wanted to make learn trading and all these things. So yes, without wasting our time, let's start the video. So now the biggest question is what price action actually is. तो प्राइस एक्शन का मतलब बहुत सिंपल है. प्राइस एक्शन का मतलब है अगर तुम चार्ट को मतलब नेगेट कर दो, इंडिकेटर सब कुछ उड़ा दो और फिर भी तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है. फिर तुम ट्रेड कर सकते हो इसके बेसिस पर जस्ट द हेल्प ऑफ फोर मेन थिंग्स एंड दैट इज कैंडलस्टिक, मार्केट का ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड चार्ट पैटर्न. डन. And with the help of these four technical things, if you can trade, yes, that's what price action looks and it means. That's it. क्यों ना अब सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि why price action matters more than anything else. Because हर एक इंडिकेटर जो भी आपको पता है, वीएफ पकड़ लो, आरएसआई पकड़ लो, एमएसीडी पकड़ लो, जो भी है सब प्राइस से ही बनता है. मतलब प्राइस पहले फॉर्म होता है, इंडिकेटर लेट में बनता है, और जो प्राइस है वो सबका लीड इंडिकेटर है, सबका बाप है, क्योंकि वो पहले बनता है, उसके बेसिस पे ही सब इंडिकेटर्स बनता है. और अगर तुम प्राइस को ही रीड करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ जस्ट फोर थिंग्स, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ट्रेंड एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सो व्हाट डू यू नीड एनीथिंग मोर? You have already decoded everything because you are getting the real time information, whereas that indicators is giving you the late information. So which will you prefer the first? Obviously the price action. That's why price action is the most. That's why I will teach you everything about everything about the price action. So let's come to my laptop and see. Let's go. तो मैं आपको बोला था चार मेन कंपोनेंट होता है प्राइस एक्शन का. सो आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन फॉर जस्ट यू ओनली. The first thing is trend, second chart pattern, third support and resistance and fourth candlestick pattern. ठीक है. So इन चारों चीज को बनाकर होता है एक प्राइस एक्शन. ये चारों एक फाउंडेशन है, ठीक है. ये एक टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन है. और अगर आपको ये सब रीड करना आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि आपको इंडिकेटर्स का जरूरत ही नहीं होगा. और मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कि ये सब यूज करके आप कैसे खुद ट्रेड कर सकते हो. So it will be very easier for you to trade because I am telling you just one thing. Just listen. मार्केट को आप जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपको सिंपल मनी देगा, क्योंकि मार्केट एक सिंपल चीज है. सिंपल चीज को यूज करके, सिंपल जिनिस करके आप पैसे कमाओ. जितना भी कॉम्प्लिकेट करोगे आप वो 9 में से आ जाओगे. आपको बनना क्या? 1 out of 9 ना. So if you want to be the 1 out of those 10 people, then you have to make it very simple. That's it. तो ये जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो दो पार्ट में होगा. एक होगा पहला पार्ट, एक होगा सेकंड पार्ट, ठीक है. तो ये जो दो पार्ट होगा, दो पार्ट में दोनों चीज सिखाऊंगा मैं. ये जो पहला पार्ट है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेंड क्या होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सिंपल. और सेकंड पार्ट में दिखाऊंगा कैंडलस्टिक का पैटर्न और चार्ट का पैटर्न, बस सिंपल. और आई एम प्रॉमिसिंग यू with the end of both of these two video I will teach you how to take trades. But yes, obviously first if you are learning price action right now, do it with the paper money, backtest your strategy, then enter in the real life market. Yes, you have to enter, you have to throw away your fear, so you have to enter. That's not any problem, but the problem is that first you have to type the real money, you have to build up your psychology, then you have to enter, right? So let's start. सो मैं आपके लिए टेम्पलेट ऑलरेडी रेडी कर रखा हूँ, और ये टेम्पलेट दिखाने के बाद मैं आपको रियल लाइफ चार्ट में भी दिखा दूंगा, ठीक है, आपको मतलब कि आपके इजी प्रोसेस के लिए. दैट्स इट. तो यहाँ पे जो टेम्पलेट है देखो, ये है फर्स्ट, ठीक है. इसको हम बोलते हैं कि अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, सेम स्ट्रक्चर फॉर्म करके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है. इसको हम बोलते हैं बुलिश स्ट्रक्चर. ओके, हो गया. अब सेकंड आता है कि बियरिश स्ट्रक्चर, मतलब कि मार्केट जब गिरा होता है या कि मार्केट जब करेक्शन में हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं बियरिश स्ट्रक्चर, ठीक है. यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई. दैट्स इट. और एक होता है साइडवेज, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड. यहाँ पे जो हाई और लो होते हैं वो इक्वल हाई होते हैं, ठीक है, इक्वल हाई और इक्वल लो. यहाँ पे ट्रेड करना सबसे मुश्किल होता है, ठीक है.
और एक सरप्राइजिंग सी चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट 60 से 65% ऑफ द टाइम मार्केट हमेशा साइडवेज रहता है। 35 to 45% ऑफ द टाइम मार्केट डायरेक्शन पकड़ता है। डायरेक्शन मतलब वो बुलिश भी हो सकता है, बियरिश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 60 to 65% ऑफ द टाइम market stays in the sideways zone, and you have to take care about this thing, because this is the main thing you have to look at the market, because maximum time where you lose money is the place that is called the sideways market. यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का पैसा जाता है, क्योंकि हमेशा लोग गिरते हुए मार्केट या उठते हुए मार्केट में पैसा बना लेता है, पर मार्केट में पैसा लूज तभी करता है मार्केट जब साइडवेज होता है। ठीक है, तो अब हम इसको रियल लाइफ चार्ट में देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी। तो रियल लाइफ चार्ट पे आगे हैं हम। ये है एक्सिस बैंक का चार्ट। कुछ भी हो जाए, ये एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। तो पहला है यहाँ पे देखो, मैं पुल स्ट्रक्चर में क्या बोला था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इसी स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर जाता है। सो सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है इसको हम बोलेंगे HL, मतलब कि हायर लो। तो ये हो गया हायर हाई, यहाँ पे भी सेम, ये है हायर हाई, ये है हायर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो हायर हाई है एच, यहाँ पे है हायर लो। ये भी ब्रेक करके यहाँ पे क्या कर दिया, हायर हाई, और यहाँ हायर लो बनाना बाकी है। ठीक है, यहाँ पे हायर लो बनाएगा तब हम बोलेगा जो कुछ भी होगा। ठीक है, सो या दैट्स द थिंग। सो अब हम देखते हैं बियर स्ट्रक्चर। तो देखो बियर स्ट्रक्चर आ गया। बियर स्ट्रक्चर में सेम फॉर्मेशन है। मैं आपको क्या बोला था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। लोअर लो कौन सा होता है, नीचे वाला, और लोअर हाई कौन सा होता है, जब नीचे आ रहा है उसका जो ऊपर हाई बनता है उसको बोलते हैं लोअर हाई, और उसका जो लो बनता है उसको बोलते हैं लोअर लो। देखो वो सेम फॉर्मेशन, ये देखो ये लोअर लो फॉर्म हुआ, ये लोअर हाई फॉर्म किया, लो फॉर्म हुआ, लोअर हाई क्रिएट किया, ये लोअर लो फॉर्म हुआ। यहाँ पे ये ब्रेक करके इसका जो ट्रेंड है ये चेंज करके ऊपर चला गया। मैं आपको ये सब बाद में दिखाऊंगी कि ट्रेंड चेंज, स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये सब क्या होता है, आपको समझना कैसे है। मैं आपको अब सिर्फ बेसिक के लिए जितना आपको समझने के लिए जरूरत है वही सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, सो हाँ ये होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा साइडवेज जोन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे जो जोन है, यहाँ से ये आता है, ये पूरा साइडवेज है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि छोटा जोन है, पर अगर मैं इसको स्केल कर दूं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये है 91 डे का जोन। 91 फ्रिकिंग डे, मतलब कि 3 मंथ्स मार्केट स्टेज इन द रेंज बाउंड फॉर कंटिन्यूअस 3 मंथ। ओके, और यही मैं आपको जोन के बारे में बोल रहा हूँ कि इक्वल हाई क्यों है। देखो इसका जो हाई है, इसका जो लो है, इसका हाई इसका लो, सबका हाई और लो इक्वल है, इसलिए हम बोलते हैं इक्वल हाई, और यहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल है। ठीक है, समझ लिया। एंड नेक्स्ट हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चीज में। आज का नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि आज का नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट भी बोल सकते हो, जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। परफेक्ट। सो ये भी हम चार्ट पे देखेंगे। तो लेट्स गो ऑन द चार्ट। देखो मैं आपके लिए एक बनाया हुआ प्रीसेट लेके आया हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, मार्केट जब रेंज बाउंड होता है, मैं क्या बोला था, 60 to 65% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड होता है, और वही आपके लिए गोल्डन टाइम है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और ट्रेड ये है, मैं ये जो है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये खुद एक स्ट्रेटेजी है। मतलब कि समझ लो ये कितना पावरफुल है, और ये प्राइस एक्शन से ही बना है। ठीक है, मतलब कि ये प्राइस एक्शन का सेकंड मेन कंपोनेंट होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये मेन कंपोनेंट होगा एक। ठीक है, प्राइस एक्शन का, तो समझ लो कि ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो लेट्स गो। मतलब कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सॉरी, क्या होता है, देखो मार्केट जब रेंज बाउंड होता है ऐसा ही क्रिएट करता है। ठीक है, इक्वल हाई इक्वल लो, इक्वल हाई इक्वल लो, मतलब कि जिसका हाई और लो वगैरह वगैरह सब सेम ही रहता है। ठीक है, जिसका कोई मतलब कि ऐसा कोई बिग ऐसा डिफरेंस नहीं होता कि इसका हाई इससे ऊपर है, नहीं, सेम ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट को एक रेंज बाउंड में फंसा जाता है। ठीक है, सपोज मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, मार्केट जब बुलिश फॉर्मेशन में होता है, नीचे से ऊपर जा रहा होता है, वहां पे क्या होता है, देखो ऊपर जहां से मार्केट बाउंस बैक करता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे जहां में सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। पे जो है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। मतलब कि जहां से मार्केट नीचे से लगकर ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट, और ऊपर से लगकर नीचे आता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सिंपल। और हाँ, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। कैसा होता है, देखो अगर हम सपोज मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा था, इसलिए मार्केट का ये सपोर्ट, मतलब कि रेजिस्टेंस था ऊपर वाला, ये था सपोर्ट। और अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, यहाँ पे चला आया और इसके बाद यहाँ पे ठुकराया, तो ये मार्केट के लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसलिए बोलता है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट।
और एक बार देखिए प्लीज, ये है मार्केट की रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, डन। और जब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, यही जो सपोर्ट था ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया, और इसका जो नीचे आएगा ये मार्केट के लिए सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो ये मार्केट के लिए सपोर्ट हो जाएगा, सिंपल चीज, एकदम सिंपल है, ठीक है। सो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मार्केट जब एक डायरेक्शन में होता है, सपोज बुलिश हो रहा है, ठीक है, मार्केट ये ऊपर वाला ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, ये सपोर्ट बन के सपोर्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अगर सपोर्ट को अगर ब्रेक कर दिया तो सपोज रेजिस्टेंस बन जाता है, सिंपल। और अगर समझ लो ये अगर ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट कैसे होगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन में कोई कमती नहीं छोड़ेगा भाई, सब कुछ दिखा देंगे। देखो मार्केट सपोज यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। देखो मार्केट जब ऐसा होगा, मार्केट के रेजिस्टेंस नीचे वाला बन जाएगा, सपोर्ट ऊपर वाला बन जाएगा, क्योंकि मार्केट जब डायरेक्शन पकड़ता है, मतलब कि अगर बियरिश पकड़ता है तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो हम जब मार्केट ऊपर जा होता था तो क्या देखा था, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और मार्केट जब नीचे आ रहा होगा तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चला जाए, मतलब कि यहाँ से बुलिश चला जाए, तो फिर ये आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि मार्केट यहाँ पे, इसको हम बोल रहे हैं, इसको बोल रहे थे सपोर्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था और ये एक बार ऊपर चला गया तो ये मार्केट रेजिस्टेंस हो जाएगा, डन, सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। तो चलो चलते हैं, सेम चीज, यही सेम चीज हम कहाँ पे देखेंगे, एक चार्ट में, एकदम रियल लाइफ चार्ट में, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैं रियल लाइफ चार्ट पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ। मैं दो बॉक्स ड्रॉ कर लिया, और ये कैसे ड्रॉ किया, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, देखो आपके पास ये नहीं आ रहा होगा, आपके पास ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाकर इसको राइट में जो है जियोमेट्रिक शेप्स यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो आप ऐसे बॉक्स खींच सकते हो, तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ये आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे मार्केट में जब भी इक्वल हाइस और इक्वल लो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक खींच दीजिए, ठीक है। मार्केट देखो नीचे से ऊपर जा रहा होता है, तो ये क्या है, सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस है, ये होगा सपोर्ट, ठीक है। देखो मार्केट इसको ब्रेक किया, बहुत ऊपर चला गया, और नाउ द मेन क्वेश्चन इज आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना होगा। सो लेट्स सी, ट्रेड लेने के लिए मैं आपको सिंपल चीज बता देता हूँ, यहाँ इसको ज्यादा मत कॉम्प्लिकेट करना है, एक बहुत ही सिंपल चीज है, द सिंपलेस्ट थिंग इन द मार्केट, ठीक है, एंड दैट इज दिस। सपोर्ट रेजिस्टेंस में बार बार बाउंस बैक करती है, जब ऊपर एक बार ब्रेक कर दिया और उसके बाद रिटेस्ट लिया, मतलब कि सपोर्ट से रिटेस्ट लिया, क्यों सपोर्ट से, बिकॉज ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट बन गया, और सपोर्ट से जब रिटेस्ट लिया तब आपको ट्रेड करना है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, ये ब्रेक किया पर रिटेस्ट करके फेल हो गया, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेक किया, रिटेस्ट करा, ऊपर गया, तो आपको ट्रेड बनेगा यहाँ पे देखो। और आपको हमेशा रिस्क टू रिवार्ड मिनिमम 1:2 मेंटेन करना ही होगा, ठीक है। देखो 1:2 इजी मिल रहा होगा, आपको ज्यादा लालच मत करना होगा, जहां पे भी जाए आपको 1:2 आए कट देना, ठीक है। तो देखो आपको ये ट्रेड कैसे लेना होगा, मैं दिखा दिया। इसका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा डिफाइन करोगे, पोजीशन साइजिंग क्या करोगे, वो आपको अपकमिंग वीडियोस में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो मैं सिर्फ बना रहा हूँ प्राइस एक्शन के लिए, तो प्राइस एक्शन के लिए मैं जितना बना रहा हूँ वही सफिशिएंट है, और ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो, एंड इन द सेकंड पार्ट विल सी यू with the two most important thing of price action, that's chart pattern and candlestick pattern, that's it, and that's gonna be the one of the best video you will ever see in your life, because आप जो भी सीखोगे मार्केट में, सब कुछ जहाँ भी सीखो, जो भी सीखो, वो स्मार्ट मनी हो गया, आईसीटी हो गया, जो भी कॉन्सेप्ट हो गया, सब ये सिंपल चीज, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, मतलब कि कैंडल स्टिक जो हो गया, ये इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक, रेड कैंडल स्टिक का बिहेवियर को समझना है, इसके ऊपर ही सब कुछ हो, ठीक है। So in the next video, we will break down about the candlestick, psychology, candlestick pattern, chart pattern, and all these things. So yes, if you really like this video, then please do like, share, and subscribe to this YouTube channel. Akin Pramanik, name यहाँ पे आ रहा होगा, I guess. Yes. So yeah, please do like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video. Bye bye, hustlers and traders. Bye bye.